So hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel where rank is a ritual. I know all of you are very much tensed in anxiety about the MCC round 2 counseling. Many of you have not got the seat in round 1 and you are thinking what should be the rank in which the round 2 of the MCC counseling will be closing. The students from South India, the students from North India, the students from West and East India are thinking about the possible closing rank of the round 2 and why this time the round 2 closing rank prediction is a little bit difficult because we don't know about how many seats are going to be added from round 2 because NMC is planning to add some government medical colleges seats in round 2 and some government medical colleges seats in round 3, and NMC is on the mission mode. They are working and giving the letter of permission to many of the colleges across India. They have given some letter of permissions to the Madhya Pradesh colleges. There are some colleges also in Uttar Pradesh which are getting LOPs, some colleges in Karnataka which are getting LOPs, and there are some colleges which we don't know कि how many seats are getting increased in that particular college, या how many seats are basically increased in the existing colleges. And that's why this time the MCC round 2 prediction will be going to be very, very difficult. We put all the data together and finally we have prepared a prediction about the probable round 2 closing ranks in different categories. So let's start the video with that. I'm making this video in English so that the South students, the students from the South India also get a clear idea about the closing ranks. So here is the closing rank that you are waiting for, the predicted closing rank for the round 2. So if we talk about the general category round 2 will touch at 25k. Definitely it is going to touch. 25,000 will be the closing for round 2. I have taken a very safe side. Might be there's a possibility that it will go 200, 300, 400 above, but it will be less than 26k, and 25k will be definitely going to hit for the general. This is not round 1, this is round 2. MCC round 2 prediction. If we talk about the OBC category students will get the seat at 25,500. It is a closing. EWS will hit in round 2 29.5k. SC will hit at 1,35,000. ST will hit at 1,65,000. I have prepared this closing rank considering that around many government medical colleges seats are added in the round 2 itself, and NMC is on the mission mode to give LOPs to many colleges across India. तो ये जो लिस्ट बनाया है बच्चों हमने, ये लिस्ट जो है, ये जो क्लोजिंग मैंने आपको प्रेडिक्ट की है कि जनरल 25,000 को हिट करेगा, ओबीसी 25,500 को राउंड 2 में हिट करेगा, ईडब्ल्यूएस 29,500 को हिट करेगा, एससी 1,35,000 को हिट करेगा, एसटी 1,65,000 को हिट करेगा. ये आपको एक्चुअली में होता हुआ दिख रहा होगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कहां पे अब कितने कॉलेजेस को सीट्स एलओपीज मिले हैं. कुछ डेटा नहीं मिल पाया है, पर बहुत सारे कॉलेजेस का डेटा जो है वो मिलना स्टार्ट हुआ है. लगभग एनएमसी ने 1000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए एलओपीज अलग अलग कॉलेजेस को दे दिया है. तो ये आपके लिए खुशखबरी है. और आप जो एमसीसी का डिले देख रहे हैं कि काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन कल आना था 29 ऑफ, अगर हम लोग बात करें अगस्त को, वो थोड़ा डिले होगा क्योंकि एमसीसी को एनएमसी ने रोका हुआ है कि भाई मुझे थोड़ा और एलओपी दे देने दे,
मुझे थोड़ा और एक दो कॉलेज मैं चाहता हूं कि उनका असेसमेंट कंप्लीट है, उनको बस एलओपी मेल करना है, साइन करना है, फाइनल असेसमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे एक बार वेरीफाई कराना है, उनका फाइनल अप्रूवल लेना है। तो आप कुछ दिन, एक दो दिन और टालिए काउंसलिंग को। और इसलिए मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि जो ये चल रहा है काउंसलिंग का प्रोसेस, इसमें एलओपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेटर ऑफ परमिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई ऐसे कॉलेज जो हैं वो आप मान के चलिए उनका एलओपी बहुत दिन से पेंडिंग है, और वो राउंड 2 में नहीं ऐड होगा तो राउंड 3 में डेफिनेटली ऐड होना चाहिए। कोई इसमें सको शंका वाली बात नहीं है। 10 ऐसे कॉलेज के राउंड 3 के अंदर आपके सीट्स ऐड होंगे तो राउंड 3 में और अच्छा खासा मुझे लगता है इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा एआईक्यू में, ठीक है। जनरल और बढ़ के जाएगा, कहां पे जाएगा मैं आपको बताऊंगा, एक बार राउंड 2 का मुझे मैट्रिक्स आ जाने दो। बट राउंड 2 में मुझे लगता है बड़ा कंफर्टेबली जनरल 25,000 को हिट करेगा, बड़ा कंफर्टेबली ओबीसी 25,500 को हिट करेगा, बड़ा कंफर्टेबली ईडब्ल्यूएस 19,500 को हिट करेगा, एससी बड़ा इजीली 1,30,35,000 मुझे लगता है आराम से हिट करेगा, एसटी 1,65,000 आराम से मुझे हिट करता हुआ दिख रहा है। बाकी आप मेरे इस व्यू पॉइंट से डिसएग्री एग्री हो सकता है, जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पोलाइटफुली, ठीक है, और पोलाइटली रहिएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर ये कॉलेज को मिलना है तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें दीजिएगा, हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला इस बार जो है मजेदार होता जा रहा है। स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूं कि आपको काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना मैंने बोला ना, जितना डिले होगा उतना बॉर्डर स्कोर वालों को चांसेस बढ़ेंगे। डिले इन द काउंसलिंग विल गिव एनएमसी द टाइम टू अप, मतलब अगर एलओपी किसी को मिल जाएगा तो वो किसी भी राउंड में शामिल हो जाएगा। हो सकता है किसी को राउंड 3 में अब एलओपी ना मिले, लेकिन स्ट्रे वैकेंसीज भी इस बार बहुत ज्यादा मजेदार होगी। इस बार स्ट्रे वैकेंसी भी बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी तक एलओपी अलॉट होगा, लेटर ऑफ परमिशन दिया जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा मजेदार मैं बोलूंगा कि इस साल का काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और ये एक वेब सीरीज टाइप का हो गया है कि सस्पेंस, ट्विस्ट, ड्रामा हर कुछ है। मुझे लगता है इंडिया के किसी बड़े मूवी डायरेक्टर को इस पे मूवी बना लेना चाहिए, क्योंकि इतना आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में, नीट के काउंसलिंग प्रोसेस को मैंने बहुत कवर किया है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि इतना ज्यादा डिले, ट्विस्ट, टर्न। तो ये हो रहा है, इस साल हो रहा है, और ये हो इसीलिए रहा है बच्चा क्योंकि इस साल बहुत सारे विशल ब्लोअर हैं जो कि एनएमसी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हम लोग भी एनएमसी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। मीडिया भी थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व हो रही है, ताकि एनएमसी को देखा जा सके कि एनएमसी एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहती है उसको अप्लाई कर पा रही है कि नहीं, उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है कि नहीं। एंड दैट्स व्हाई एनएमसी के जो चीफ है उन्होंने बोला कि हमें मिशन मोड पे काम करना पड़ रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग को नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि नंबर और क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स दोनों बढ़े। तो ये बेटा, और 5 अगस्त को आप देखिएगा कि एनएमसी के चीफ को पदभार मिला है, 5 अगस्त को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उनके पास भी टाइम जो है थोड़ा सा लिमिटेड है, उनको भी प्रूफ करना है कि भैया हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन जो काम एनएमसी को 6-7 महीने में साल के कर देना चाहिए था, उसमें मैं बोलूंगा कि जो प्रीवियस चेयरमैन था उनका जो इनएक्टिवनेस था वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसकी वजह से इस साल बच्चों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा हेजी हुआ है, वो थोड़ा सा लटका है, और जो काउंसलिंग अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी पूरी तरीके से वो डिले हुआ है। आपका पूरा का पूरा एकेडमिक करिकुलम डिले हो चुका है, हर स्टेट का एकेडमिक करिकुलम, मेडिकल करिकुलम जो है वो डिले हो चुका है। बट मुझे इसमें बस एक जो पॉजिटिव चीज दिख रहा है कि मेरे जो बॉर्डर स्कोर वाले स्टूडेंट है, जिनको ये लग रहा था कि मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, उनकी भी चांसेस बहुत अच्छी खासी बनती हुई दिख रही है। और मैं बोल रहा हूं, उम्मीद मत हारिएगा, क्योंकि स्ट्रे राउंड में बहुत अच्छी खासी इन्फ्लेशन आपको क्लोजिंग रैंक में देखने को मिलेगी। तो आपका अगर सपना है कि इस साल हमें क्लोजिंग रैंक, मतलब इस साल मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो आपको बॉर्डर वालों को मैं हमेशा बताता हूं, उसलिए मैंने बहुत वीडियो डाला हुआ है, सेफ स्कोर, डेंजर स्कोर, एमसीसी का भी डाला हुआ है। तो डेंजर स्कोर वाले तो खैर अलग बात है, लेकिन जो सेफ और डेंजर के बीच में जो बॉर्डर लाई कर रहा है ना, जो बफर आ रहा है बीच में, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन वो फायदा आपको इमीडिएट सेकंड राउंड से नहीं दिखने को मिलेगा, थर्ड राउंड, यानी यहाँ पे इस बार के काउंसलिंग में आपकी
अच्छी खासी लेवल पे पेशेंस भी चेक होगी कि आप कितना पेशेंट है। और जो लोग इम्पेशेंट होंगे, जो लोग इमैच्योर होंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, चॉइस फीलिंग नहीं करेंगे, बेटा आप अगर बॉर्डर पे हैं, आप मैच्योर नहीं है, आप इम्पेशेंट है, तो फिर इस काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं, और आपसे ज्यादा रैंक वालों को सीट अलॉट हो जाएगा क्योंकि आपसे ज्यादा मैच्योरिटी वो दिखाए थे, आपसे ज्यादा उन्होंने चॉइस फीलिंग में दिमाग लगाया था। एंड मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमसीसी का चॉइस फीलिंग, एमसीसी का चॉइस फीलिंग ढंग से करिए, ठीक है, एमसीसी का चॉइस फीलिंग ढंग से करिए। आप देख लीजिए कि आपका, अगर देखो जो बॉर्डर वाले हैं, बॉर्डर स्कोर वाले का कोई चॉइस नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी चॉइस, दे डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो आपको अगर नॉर्थ ईस्ट का भी कॉलेज मिल रहा है, आपको जाना पड़ेगा, आपको साउथ, आप नॉर्थ के, आपको साउथ का कॉलेज मिल रहा है, जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको हो सकता है यूटी का कॉलेज मिल रहा हो, जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो चॉइस फीलिंग जो है बेटा, इट शुड बी डन विथ एक्यूरेसी। आप दिमाग में अपना सेट कर लीजिए कि हमको बीडीएस करना है, बैम्स करना है, तो हम बीडीएस को, खासकर बीडीएस को कहां रखेंगे, तो बीडीएस तो आपको मिल ही जाएगा, बॉर्डर वालों को बीडीएस तो मिल ही जाएगा, तो बीडीएस को कहां रखना है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे आपको अगर हमारी हेल्प की जरूरत है तो आप हमारा 5K वाला जो एमसीसी प्लान है, एमसीसी प्रेफरेंस लिस्ट जो हम लोग बनाते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके इसमें आपका एमसीसी का प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगा। इसमें आपका कॉल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, कॉल एंड चैट सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप बात करके हमारी टीम से आराम से अपना पूरा का पूरा प्रेफरेंस लिस्ट बनवा सकते हैं। और इस बार मैं तो ऐसे अपना कभी भी काउंसलिंग पैकेज बेचता नहीं हूं, बट एमसीसी की काउंसलिंग अगर आपको करानी है तो आई विल से कि 5000 रुपीज आपको हमारी काउंसलिंग प्रोसेस लेनी चाहिए अगर कुछ आइडिया नहीं है तो। और कॉल चैट सपोर्ट मिलेगा, हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है वो हेल्प करेंगे। अब देखो ये पैकेज जो है ये हर बच्चे के लिए, तो मैं बोलूंगा कि जिनको नॉलेज है उनके लिए तो कोई जरूरी नहीं है, पैसा खर्चा ही नहीं करना है। लेकिन कुछ कुछ लोग, इस बार मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका 70-80 हजार एससी कैटेगरी में रैंक था, लेकिन चॉइस फीलिंग इतनी घटिया तरीके से की कि कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, 70-80 हजार में एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना मिलना, तो मतलब आपने चॉइस फीलिंग एकदम घटिया किया है, कुछ नहीं पता है आपको। तो वैसे बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे में डेली लेवल पे मान के चलो 5-6 बच्चे मिलते हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप, और मैंने तो प्रेफरेंस लिस्ट का वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, कई स्टेट का प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बना के डाल दिया कि वो तो देख लो कम से कम। बट फिर भी आपको डाउट है, अगर एमसीसी का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला पैकेज, बहुत सस्ता पैकेज है, आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आता है आपको काउंसलिंग तो प्रेफरेंस लिस्ट समझदारी से बनाइए, पैसे नहीं खर्च करने, नहीं करिए, ठीक है। और जिनको लेना है वो कुछ नहीं करना है, वो यूपीआई करेंगे, और यूपीआई करना है इस नंबर पे, ठीक है। तो हमारी टीम आपको पूरा चैट कॉल सपोर्ट पे बताएगी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, क्या 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 करना है, ठीक है। बस इतना ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड ऑल द बेस्ट। दिमाग में रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये आपका हिट करना चाहिए। जनरल का 25,000, ओबीसी 25,500, ईडब्ल्यूएस 29,500, एसटी 1,35,000, एसटी 1,65,000। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, कार्टल स्टूडेंट का चैनल है, एआईआर कार्टल, इस स्टूडेंट के चैनल को आप स्टूडेंट ही मजबूत बना सकते हैं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।